Hello, good afternoon, everyone. So, today we are going to start with a new session that is HTML. Okay, so first, what is HTML? Okay, so first, see, this is the PDF on HTML. So, what is HTML? So, actually, there are multiple languages available inside a market. For example, it's a scripting language, it's a coding language. Okay, so most of the time we are listening about the coding languages like C, CPP, Java, .NET. These are the coding languages जिसका यूज हम लोग एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप लोग जैसे कि एंड्रॉयड ऐप डिजाइन करना है वॉट एवर कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है सो वी आर यूजिंग ए कोडिंग लैंग्वेजेस. So HTML is what? So HTML is a scripting language. Basically, it is a front-end programming language. So what is a front-end? So see, front-end means what? Suppose you want to design a form, you want to design anything. So front-end means designing part. Okay, that is the your visualization part. जो भी आप लोग create करोगे, it is in the form of graphics. So उसी में से एक है HTML. So it's a very basic language आता है front-end में, जिसका actually starting ही आप लोग बोल सकते हो that is from HTML. Okay, so first thing, HTML is a scripting language which is used to design a web pages. Okay, so वेबसाइट रिलेटेड कोई भी आप लोगों को ऑनलाइन कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ऑनलाइन कोई भी साइट आपको डिजाइन करनी है, देन वी रिक्वायर्ड HTML. सो व्हाट इज HTML? सो एक्चुअली HTML का लॉन्ग फॉर्म आता है, इट्स अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. Okay, see, it's a hypertext markup language. Okay, so first thing, HTML is developed in 1991, which is developed by Tim Berners-Lee, and currently we are using a HTML5 which is developed in 2014 with the advanced tags. Okay, so second thing, then what is the difference between HTML and HTML5? Most of the company ask you about differences between HTML and HTML5. So see, there is a version difference, it's okay. So HTML is the first version of HTML and HTML5 is the current version. So there are multiple tags added inside HTML5 like audio video tags. Then we are using multiple tags, like some tags replaced with another tags, like bold tag replaced with strong, italic replaced with EM. So there are multiple tags included inside HTML5, and this is the advanced version of HTML, and currently we are using HTML5. Okay, so next, if you want to learn any coding language or any type of language now, then there are some basic rules. So if you want to know about the HTML now, so there are basically two tags. Your total HTML depends on that tag. So first is opening tag and second is closing tag. For opening tag, we use a opening angular bracket, and closing tag we use a angular bracket. Just use a slash inside a opening angular bracket. Okay, so see, there are multiple tags available inside a HTML. So we are learning it one by one. So now we are going to start a practical on HTML. Okay, so now in market, Visual Studio Code is a very knowing code, or you can say it's a very famous editor for writing all the languages. Okay, or for mostly front end developer uses Visual Studio Code. Why? Because it gives you the code readability, or you can say it is easy to use. Okay, no need to write each and every code. It gives you the, what we can say, it gives you the options, or it gives you a drop down list. Okay, it means it gives you the annotations, or it gives you the notations. So it, you don't require to know each and every tag, or no need to require syntax of each tag. So it gives you in advance. So now we require a Visual Studio Code. So see, Visual Studio Code is an editor which is available on a net, and it is available free. So no need to purchase it. It's open source. So it's a Visual Studio Code. See, first we will see how to install that Visual Studio Code. Okay. So see what to do. Just open your Chrome browser. आप लोगों को Chrome browser के ऊपर जाना है, and inside a Chrome browser, just write down, it's a Visual Studio Code. It's a Visual Studio Code. Okay, just download करना है तुम लोगों को. So select Visual Studio Code, download. So आप लोगों को फर्स्ट ही उसका एक स्टैंडर्ड साइड है, वेबसाइट है, या स्टैंडर्ड उसका एक खुद का वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना है. फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करो.
सी क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस आए तुम लोगों को, दैट इज आरपीएम, अबंतु या लिनक्स के लिए यूज होता है ये, लिनक्स एंड रेड हैट के लिए। दिस इज फॉर मैक। सो हम लोग विंडोज के ऊपर काम करने वाले हो, सेलेक्ट विंडोज, एंड विंडोज के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद सी ये डाउनलोड हो जाएगा। सो वेट फॉर completing the download. After downloading, just install it just like a normal software. Just click on next. So वो easily download install हो जाएगा. Okay. So this is the process for downloading and installing the Visual Studio Code. अभी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं VS Code की तरफ। एक बार इंस्टॉल होने के बाद वो तुम लोगों के पीसी में दिख जाएगा। सो जस्ट सर्च बार में जाके लिखना है Visual Studio Code एंड जस्ट ओपन इट। ओके, सो दिस इज माई एडिटर। एक्चुअली मैंने पहले इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, सो वो सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो जस्ट मैं अभी क्लियर करती हूँ मेरा स्क्रीन। सो मैंने क्लियर किया यहाँ पे। नाउ आई वांट टू क्रिएट माय ओन HTML page. Okay, so see, for any coding language, if you want to write a C code, then we use a .c. For CPP, we use a .cpp. Just like that languages, if you want to write a HTML code now, then there is an extension .html. Okay, it's the extension .html. Okay, so first, suppose मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। सो फॉर दैट जस्ट क्लिक ऑन ए फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे जाके सेलेक्ट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट HTML। ओके, जस्ट सेलेक्ट कीजिए, दैट्स इट। नाउ सी, HTML के बारे में एक तुम लोगों को हमेशा बात याद रखनी है। HTML का कोड लिखने से पहले ना यू हैव टू सेव इट। सो तुम लोगों को ना एब्रीवेशंस मिल जाते हैं उसके। सो क्या करना है, अल्ट F, मैं इसको सेव कर दूँ। सो फर्स्ट सेव करना है। सपोज दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम ना, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ first.html एंड लोकेशन तुम लोग तुम्हारे हिसाब से कोई भी दे दो जो तुम लोगों को चाहिए। सो मैं डेस्कटॉप के ऊपर लिखना चाहती हूँ, दैट इज first.html। सेव करो इसको। ओके, सो एस, ये मेरा पेज यहाँ पे सेव हो गया। अभी मुझे क्या करना है, आई वांट टू जस्ट क्रिएट ए HTML, एक बेसिक सा वेब पेज डिजाइन करना है, जस्ट लाइक योर क्रोम। सी, क्रोम ओपन किया तो क्रोम का ये बेसिक पेज ऐसे दिखता है। सो आई वांट टू क्रिएट माय ओन क्रोम पेज। सो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, आई जस्ट वांट टू ओपन द HTML टैग। सबसे इंपॉर्टेंट टैग एक ही HTML के अंदर, दैट इज HTML। एक ही है ऐसे नहीं बोल सकते, एक्चुअली इट इज ए मेन टैग जिसको ओपन करना है सबसे पहले एंड क्लोज करना है सबसे एंड में। एंड वॉट एवर लॉजिक यू वॉन्ट टू राइट ना, जस्ट राइट इनसाइड दिस HTML टैग। ओके, सो फर्स्ट मैंने HTML को ओपन किया, क्लोज किया, फाइल तो मेरे पास सेव ही है। ओके, सो HTML लैंग्वेज का एक क्या है ना, एक फीचर है उसका अलग से, एक कि इसमें 2 फाइल क्रिएट होती है तुम लोगों की। एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी एंड एक फाइल क्रिएट होती है, दैट इज क्रोम। एक क्रोम का फाइल क्रिएट करता है वो। सो सी, यहाँ पे एक क्रोम का फाइल क्रिएट हुआ मेरा, दैट इज फर्स्ट। इसके ऊपर क्लिक करो। सी, मैंने जस्ट HTML टैग ओपन किया एंड क्लोज किया, उसके कारण मुझे एक सिंपल सा वेब पेज मिल गया। एंड पेज का नाम क्या है यहाँ पे चेक करो, इट्स अ first.html। ओके, सो जैसे मैंने तुम लोग को बोला, देयर इज डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। सो ये नॉर्मल HTML के बंदे थे ना, वो ऐसे लिखते थे, HTML ओपन करते थे, उसके अंदर जो भी लिखना है क्लोज करते, दैट्स इट, हो गया HTML। बट nowadays all website becomes responsive. So what is the meaning of that responsive? रिस्पॉन्सिव का मीनिंग क्या होता है, मैंने अगर मेरा वेबसाइट मोबाइल के अंदर खोला तो मुझे वैसे ही दिखना चाहिए जैसे लैपटॉप के अंदर दिख रहा है। जैसे लैपटॉप के अंदर दिख रहा है वैसे ही मुझे किसी पर्टिकुलर डेस्कटॉप के ऊपर देखना है। सो वी आर फिक्स व्यू ऑफ माई पर्टिकुलर वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्सिव व्यू। एंड उसके लिए HTML5 के अंदर तुम लोगों को एक बॉयलर प्लेट नाम का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है। सी, इट्स अ बॉयलर प्लेट कोड। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट बॉयलर प्लेट कोड, तो तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है एंड उसके बाद करना है एंटर। सी, दिस इज द boilerplate code. So what is the meaning of that boilerplate code? So ये इसके अंदर एक टैग होता है मेटा टैग। सी स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेटा टैग। ओके, सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस टैग वी क्रिएट आवर वेब पेजेस रिस्पॉन्सिव। व्हाई? सी, मेटा टैग के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे एक दिया है, देखो यहाँ पे इट्स अ व्यू पोर्ट, नेम इज व्यू पोर्ट। सेकेंड थिंग यहाँ पे दिया है कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ, एंड यहाँ पे दिया है देखो इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। ये तीनों एट्रीब्यूट यूज होते टू डिजाइन अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, एंड दिस टैग इज कॉल्ड एज अ बॉयलर प्लेट कोड। ओके, अभी जस्ट मैंने इसको सेव किया एंड सपोज आई वांट टू रन इट। सो सी, यहाँ पे सेम वही पेज क्रिएट हुआ, कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं एंड यहाँ पे नाम आ गया, इट्स अ डॉक्यूमेंट। ओके, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, सी डॉक्यूमेंट इज माई टाइटल। सो सी, यहाँ पे एक टैग देखने को मिल रहा है तुम लोगों को, दैट इज हेड एंड टाइटल। सो याद रखना है तुम लोगों को, देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML के टैग में क्या आता है, फर्स्ट इज HTML टैग, उसके बाद आएगा हेड,
हेड के अंदर सारे लिंक्स प्रोवाइड करने हैं तुम लोगों को एंड टाइटल टैग प्रोवाइड करना है। आफ्टर क्लोजिंग हेड एंड टाइटल टैग वी रिक्वायर्ड ए बॉडी टैग। सो ये स्ट्रक्चर है उसका। इस स्ट्रक्चर में आपने नहीं किया तो भी चलता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऐसा ही होना चाहिए, बट एक्चुअली इट्स अ फॉर्मेट, सो उसी फॉर्मेट में जाओ तो इससे बेटर होगा तुम लोगों को रन करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग, आई डोंट वांट दिस डॉक्यूमेंट एज अ टाइटल। सो मुझे यहाँ पे सपोज मुझे टेक्नोवेल का वेबसाइट क्रिएट करना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्नोवेल एजुटेक, दैट्स इट, जस्ट सेव किया मैंने। अभी देखो पेज में चेंजेस क्या हो रहे हैं, कंट्रोल आर यूज किया जाता है टू रिफ्रेश द स्क्रीन, और यू कैन रिफ्रेश इट फ्रॉम हियर आल्सो। सो सी यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, दैट इज टेक्नोवेल एजुटेक। क्लियर है, मेरा टाइटल यहाँ पे क्लोज हुआ। सो दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ टाइटल टैग। सो अभी आप लोगों को बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। सी लैंग ई एन इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने वाले हम लोग, दैट्स व्हाई इट्स ई एन। ओके, सो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं निकालती हूँ बिकॉज हम लोगों को अभी सब लर्न करना है, वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। सो जस्ट मैंने एक एचटीएमएल का टैग यहाँ पे लिया। जैसे मैंने तुम लोग को बोला आफ्टर एचटीएमएल देयर इज ए हेड टैग एंड इनसाइड ए हेड टैग वी आर यूजिंग ए टाइटल टैग, एंड मैंने यहाँ पे लिखा इट्स अ टेक्नोवेल एजुटेक। एंड सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, एक एचटीएमएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है, तुम लोग बीच में स्मॉल बीच में कैपिटल लिख सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि कैपिटल में ही होना चाहिए या स्मॉल में ही होना चाहिए, बट इट्स अ स्पेलिंग सेंसिटिव लैंग्वेज, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो दैट इज द रूल फॉर एचटीएमएल। ओके, एंड सी एक बात याद रखो, एचटीएमएल में कैसे होता है, कहाँ पे ओपन करना है कहाँ पे क्लोज करना है, उतना तुम लोग को समझ में आना चाहिए। अगर उतना समझ लिया ना तुम लोगों ने, सो समझो कि एचटीएमएल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो सी मैंने टाइटल ओपन किया, मुझे क्या टाइटल देना था वो मैंने यहाँ पे दे दिया एंड टाइटल टैग को क्लोज किया, दैट्स इट, हो गया, मेरा टाइटल का काम हो गया। ओके, सो तुम लोग को इतना ही समझ में आना चाहिए कि किसका स्कोप कहाँ पे स्टार्ट करना है कहाँ पे क्लोज करना है, दैट्स इट। ओके, अभी नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, मैंने टाइटल दिया, मेरा टाइटल का काम हो गया, हेडिंग का भी काम हो गया यहाँ पे। अभी नाउ सी व्हाट हैपन, दिस व्हाइट स्पेस जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ बॉडी। ये जो व्हाइट स्पेस है इसको एचटीएमएल के अंदर बॉडी कहा जाता है। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट बॉडी टैग, वो देखते हैं हम लोग। सो सिंपल, मैंने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किया एंड देन क्लोज किया, सेव किया। सी तुम लोग को यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं क्या, नो नथिंग। देन तुम लोग के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आया होगा, देन व्हाई वी यूज ए बॉडी टैग। तो सी व्हाट इज द पर्पज ऑफ बॉडी टैग। सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है, ये पेज मुझे व्हाइट में दिख रहा है, मुझे उसका कलर चेंज करना है, या आई वांट टू इंसर्ट इमेजेस फॉर द बैकग्राउंड। तो ये नॉर्मली नहीं होगा, तो तुम लोगों को उस टाइम पे बॉडी टैग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके, सो मैंने एक बॉडी टैग लिया, बॉडी टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो सी देर आर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट सी, एक और कॉन्सेप्ट रहेगा मेरा यहाँ पे। सो इफ यू वांट टू इंसर्ट कमेंट इनसाइड एचटीएमएल ना, देन वी यूज एंगुलर ब्रैकेट स्लैश डॉट डॉट, एंड फिर यहाँ पे सपोज आई वांट टू, तुम लोग को रिप्रेजेंट करना है मुझे एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। ओके, सो देर आर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। सो फर्स्ट इज अ बीजी कलर, एंड एज अ कोडर तुम लोगों को कलर का स्पेलिंग याद रखो, तुम लोग को आदत लगाओ, कलर का स्पेलिंग COLOR ही लिखना है, सो डोंट राइट LOUR। एंड सेकंड होता है इट्स अ बैकग्राउंड। ओके, सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस टू, प्रैक्टिकली देखेंगे बट स्टिल एक थ्योरेटिकली बता दी। सो बीजी कलर का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड का मीनिंग क्या होता है, सपोज यू वांट टू इंसर्ट इमेजेस टू द बैकग्राउंड, देन यूज अ बैकग्राउंड। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टू। सो मुझे क्या करना है, अभी बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी बॉडी बीजी कलर इक्वल टू, कौन सा कलर बैकग्राउंड में देना है, सपोज आई वांट टू इंसर्ट ए ग्रे कलर, सो मैंने यहाँ पे ग्रे दिया, सेव करो, कंट्रोल आर रिफ्रेश करो, आ गया बैकग्राउंड में ग्रे कलर। सो दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ बॉडी टैग। पेज को कोई भी कलर देना होगा, दूसरे टैग थ्रू नहीं जा सकते तुम लोग। ओके, जैसे मैंने अभी कलर का बोला, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू सेट इमेजेस टू द बैकग्राउंड, देन वी यूज ए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। ओके, एंड बैकग्राउंड में तो सी अगर मैंने मेरे डेस्कटॉप के ऊपर देखा ना, सो वहाँ पे दो तीन इमेजेस है, सपोज मेरे पास 3 नाम का इमेज है यहाँ पे। सो एंड एक वन मोर थिंग याद रखनी है तुम लोगों को, सो जब भी तुम लोग इमेज लेके आते हो ना, सो इट्स कंपल्सरी कि तुम लोग को उसका एक्सटेंशन याद होना चाहिए। सो इन माई केस इट्स अ JFIP, इमेज का नाम है 3। सो मैं यहाँ पे नाम देती हूँ, इट्स अ बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने दिया 3.jfib, सेव किया। नाउ आई वांट टू रन इट, कंट्रोल आर रन किया, सी आ गई बैकग्राउंड में इमेज। सो इट इज ए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, बट सपोज मेरे पास यहाँ पे BK नाम का कोई इमेज है ही नहीं, बट मैंने स्टिल यहाँ पे दिया एंड रन कर रही हूँ, तो मुझे आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज वो इमेज आपको उस लोकेशन पे नहीं मिल रहा है। बट सपोज आपको किसी भी लोकेशन का इमेज लेके आना है, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मेरी सारी जो इमेजेस है ना वो D ड्राइव के अंदर है।
सो इनसाइड ए डी इट्स मेरा जो फोल्डर है वो मैं उसको ओपन कर रही हूँ, उसके अंदर इमेजेस करके एंड सी यहाँ पे इमेजेस के अंदर मेरे पास bk1 नाम का एक इमेज है। सो इस केस में क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, सो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द पार्ट, जस्ट कॉपी करना है इसको, देन राइट दैट पार्ट इनसाइड योर प्रोग्राम। सो यहाँ पे तुम लोगों को उसको कॉपी करना है, जस्ट कॉपी इट, then use a slash and then bk1.jp. Okay, so what happened, suppose your image and your program is on a same path, then no need to mention the path. But if your program is on another part and image on another part, then it's compulsory to use a path over there. Okay, so just save it and now run it. So what happens, see, it gives you that particular image. Okay, so these are the two ways. So first is bg color, which is used to insert background color, and second is background, which is used to insert images inside your html page. Okay, done. So this is about the body tag. So next tag is heading tag. So what is the purpose of head tag? So हम लोगों ने यहाँ पे basically देखा ही है what is head. So it's a normal head tag. But suppose मुझे html के अंदर कुछ तो heading लिखना है. Suppose मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू html, जस्ट एक मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट इंसर्ट किया, दैट इज वेलकम टू html। सी जस्ट मैंने इसको सेव किया एंड रन किया। सो व्हाट हैपन, सी मुझे यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू html। सो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो इमेज दिया है ना इसको निकालती हूँ। सो इमेज के कारण वो मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, सो जस्ट रिमूव इट एंड वॉट एवर कोडिंग यू आर राइटिंग ना, जस्ट राइटिंग इनसाइड ए बॉडी टैग। बॉडी टैग मीन्स तुम लोगों का html पेज का एक्चुअल एरिया स्टार्ट होता है वहां से। ओके, सो जस्ट सेव इट एंड मैंने इसको रन किया। सी व्हाट हैपन, वेलकम टू html एज इट इज वेब पेज के ऊपर आया। बट समहाउ मेरी कंडीशन है कि हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। सो वेबसाइट डिजाइन करते टाइम हम लोग को क्या है ना, फॉन्ट का एक मेजरमेंट रखना पड़ता है। सो फर्स्ट थिंग, तुम लोगों को उसके लिए HTML में ना 6 सब हेडिंग्स प्रोवाइड किए, इससे H1, H2, H3, H4, H5, H6 ऐसे 6 सब हेडिंग्स प्रोवाइड किए। तो उसमें से मैं वेलकम टू HTML के ऊपर H1 लगाऊंगी। सी वेलकम टू HTML, उसके ऊपर मैंने H1 लगा दिया। सो जस्ट कट कर रही हूँ यहाँ से मैं उसको एंड जस्ट पेस्ट इट हियर एंड सेव करो एंड नाउ रन इट। सी व्हाट हैपन, क्या चेंजेस दिख रहे हैं आप लोगों को। जैसे वेलकम टू HTML नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा था, जैसे मैंने उसके ऊपर H1 अप्लाई किया, सो वो मुझे प्रॉपर एक हेडिंग पे फॉर्मेट में आ रहा है। बाय डिफॉल्ट उसने बोल्ड भी लिया है यहाँ पे। ओके, सो H1 एक सबसे बड़ा हेडिंग होता है तुम लोगों के HTML टैग के अंदर। जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि इट्स H1 टू H6 देयर आर 6 सब हेडिंग्स अवेलेबल। ओके, सो मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट इसको कॉपी कर रही हूँ, नीचे पेस्ट कर रही हूँ। सो 6 है ना, इट्स 2, देन इट्स 3, 4, 5, 6 एंड एक 7 भी लेती हूँ मैं, तुम लोग को समझ में आएगा 6 ही क्यों है, 7 है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे लिखा H2, इट्स H3, ये होगा मेरा H4, ये होगा मेरा H5, दिस इज H6 एंड ये होगा इट्स H7। ओके, सो मैंने यहाँ पे किया इट्स H2, this is H3, it's a H4, it's a H5, it's a H6 and this one is H7। so see what happened, VS Code इतना क्या बोलते हैं टैलेंटेड एडिटर है ना। सो जब भी एरर आएगी ना तुम लोगों को, वो हाईलाइट करता है रेड में, ये दिखाता है इट्स डेप्रिकेटेड। सो जस्ट सेव करो इसको एंड रन करो। सी व्हाट हैपन, ठीक से देखो आउटपुट को, H1 से H6 तक हेडिंग आ रहा है तुम लोगों को एंड इट्स अ बोल्डिश फॉर्मेट में आ रहा है। बट वेलकम टू HTML जो लास्ट वाला लिखा है ना, वो नॉर्मल टेक्स्ट है। सो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर इज नो H7 टैग इनसाइड HTML। H7 नाम का कोई टैग ही नहीं होता है। सो देर आर टोटल 6 सब हेडिंग्स अवेलेबल इनसाइड HTML। ओके, क्लियर है। सो व्हाट इज H1, H मीन्स हेडिंग एंड उसके अंदर टोटल 6 दिए मुझे। सो इट्स H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस फॉर्मेट में जाएगा वो। ओके, डन। देन नेक्स्ट इज व्हाट, सपोज ये हुआ अबाउट हेडिंग, बट सपोज मैंने यहाँ पे एज अ आई वांट टू इंसर्ट ए पैराग्राफ इनसाइड माय बॉडी टैग। ओके, सो फॉर पैराग्राफ वी यूज ए P टैग, जस्ट P लिखना है। ओके, एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इट्स हाई कोडर्स। ओके, इट्स हाई कोडर्स एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपल लिख दिया हाउ आर यू। सी यहाँ पे बोला मैंने हाई कोडर्स हाउ आर यू, जस्ट एक सिंपल मैसेज लिख दिया पैराग्राफ के अंदर। इसको सेव किया मैंने, कंट्रोल R रिफ्रेश किया। सी क्या दिख रहा है, जैसे वहां पे लिखा था वैसा ही यहाँ पे आया। सो तुम लोग को एक आइडिया आ गया यहाँ पे होगा कि मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा एंड ऐसा टेक्स्ट लिया। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का फॉर्मेटिंग पैराग्राफ का एंड नॉर्मल टेक्स्ट का सेम ही होता है। ओके, बट सी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैराग्राफ लिया, मुझे लगा कि नहीं मुझे इसका टेक्स्ट ना थोड़ा बोल्ड करना था। सो किसका बोल्ड में करना है, पैराग्राफ का। सो पैराग्राफ से पहले यूज करो B टैग।
सबका इनिशियल लेटर यूज होता है। बोल्ड में करना है किसे, पैराग्राफ को बोल्ड में किया, उसके बाद बोल्ड टैग को क्लोज करना है, सो मैंने यहाँ पे उसको क्लोज किया। सेव करो, रन करो, सी हो गया बोल्ड में कन्वर्ट। बाद में तुम लोगों को लगता है नहीं मुझे उसके फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, या सपोज हम लोगों को इसका थोड़ा टिल्ड करना है, सो सी जैसे मैंने तुम लोग को बोला HTML के अंदर हम लोग बी यूज करते थे फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, बट अभी करंट वर्जन जो है उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड किया हुआ है। सो हम लोगों को उन्होंने स्ट्रॉन्ग दिया है, सो स्ट्रॉन्ग एंड सेम मैंने एक और पैराग्राफ लिया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाई डेवलपर्स। ओके, पैराग्राफ टैग को मैंने क्लोज किया, जस्ट सेव करो इसको एंड रन करो, सी सेम रिजल्ट आएगा तुम लोगों को। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन बी एंड स्ट्रॉन्ग। सो बी इज अ ओल्ड वर्जन, स्ट्रॉन्ग इज अ न्यूअर वर्जन, दोनों का यूज सेम ही होता है टेक्स्ट को बोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट एक होता है दैट इज आई। सो आई मीन्स इटैलिक। ओके, तो सपोज मुझे क्या करना है, ये जो मेरा करंट टेक्स्ट है ऊपर का पी वाला, मुझे उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना है। सो इटैलिक मीन्स टिल्ड में आएगा, वो टिल्ड हो जाएगा। तो किसे कन्वर्ट करना है, पी को, तो उसके पहले मैं आई टैग ओपन करती हूँ। ओके, एंड इसके बाद मुझे वो नहीं चाहिए, सो जस्ट इसको कट करो, Ctrl+X, एंड देन मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगी। इसी क्लोजिंग टैग का सीक्वेंस कैसे भी रखो चलता है, ऐसे नहीं है कि बी से पहले आया तो बी से पहले क्लोज होना चाहिए, बाद में किया है इससे पहले किया तो भी चलता है। सो जस्ट सेव इट, Ctrl+R रिफ्रेश करो, सी दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। आई लगाया मैंने, सो आई का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा ऐसे तुम लोगों को वो टेल्ड दिखेगा, टेल मीन्स ऐसे थोड़े स्लांटिंग में दिख जाएगा वो। नेक्स्ट, जैसे HTML के अंदर तुम लोग आई यूज करते थे दैट इज फॉर इटैलिक, वैसे HTML5 में तुम लोगों को EM प्रोवाइड किया होता है। सो EM मीन्स इम्फासाइज्ड। ओके, दोनों का पर्पज सेम ही है, जैसे बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग है वैसे इटैलिक के लिए यूज किया जाता है EM। सो मैं यहाँ पे उसको क्लोज करती हूँ, Ctrl+V, जस्ट सेव करो, अभी रन करो, सी दिख रहा है दोनों में सेम। ओके, सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव टैग्स। ऑल्टरनेटिव मीन्स बी या स्ट्रॉन्ग यूज करो, आई या EM यूज करो। एंड नेक्स्ट एक टैग होता है दैट इज अंडरलाइन टैग। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे कोडस है ना उसको अंडरलाइन करना है, सो मैं यहाँ पे यू यूज करूंगी। अंडरलाइन के लिए यू यूज किया, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव टैग नहीं है, अंडरलाइन के लिए एक ही है दैट इज यू। सो जस्ट यू टैग ओपन करो, Ctrl+X, यहाँ से मैंने हटा दिया, किसके ऊपर अप्लाई करना है, मुझे कोडस के ऊपर, सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कोडस। सो जस्ट सेव करो इसको, सेव करने के बाद यहाँ पे रन करो, सो सी कोडस के नीचे तुम लोगों को अंडरलाइन आया। ओके, सो यू मीन्स अंडरलाइन। ओके, clear है, so what is the purpose of you? Okay, so all these are the text formatting tags. So what is the meaning of text formatting? So text का meaning क्या होता है, जिस tag के कारण तुम लोगों को text में changes दिखेंगे, so these are the text formatting tags. So second thing is ये हुआ मेरा। ओके, बाद में मुझे याद आया कि नहीं, सी हम लोगों को नोटबुक में क्या होता है, कोई रॉन्ग होता है तो हम लोग उसको ऐसे कट कर देते, उसी के सामने लिख देते। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे हाई डेवलपर्स नहीं चाहिए था, आई वॉन्ट टू टेस्टर्स, बट कोडिंग में क्या होता है ऐसे सामने ही आएगा, बट HTML तुम लोगों को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। सपोज आई वांट टू रब द डेवलपर्स, तो इट्स ओके कि तुम लोग उसको निकाल दो, या कोडिंग के लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्राइक करो, इट्स अ स्ट्राइक। ओके, सो स्ट्राइक का मीनिंग क्या होता है, तुम लोगों को उसको कट करना है। सो जस्ट कॉपी करो इसको, मैं यहाँ पे निकालती हूँ, इट्स अ Ctrl+X, बात का ये रॉन्ग हुआ है स्पेलिंग, इसको हटा देती हूँ। एंड मुझे डेवलपर्स को कट करना था, सो मैंने उसके ऊपर स्ट्राइक अप्लाई किया। सो जस्ट सेव करो, सेव करने के बाद यहाँ पे Ctrl+R हो गया स्ट्राइक। सो स्ट्राइक का मीनिंग क्या होता है, वो उसको कट कर देगा। ओके, सो ये स्ट्राइक जो था दैट इज इनसाइड HTML, बट अगेन HTML5 के अंदर उन्होंने इंसर्ट एंड डिलीट किया है। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंसर्ट एंड डिलीट, सी हाई कोडस लिखा है ऊपर। ओके, सो मुझे क्या करना है, कोडस है ना उसको हटाना है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट। ओके, सी इंस्टेड ऑफ स्ट्राइक वी आर यूजिंग डिलीट। ओके, एंड डिलीट किसके ऊपर लगाना है, कोडस के ऊपर, सो यहाँ पे क्लोज कर दो डिलीट टैग को। अभी सेव करो एंड रन करो, सी दोनों में सेम दिख रहा है। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, कोडर्स को हटाया एंड उसके जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना था हाई स्टूडेंट्स। ओके, सेव किया मैंने, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्टूडेंट है ना, ये मैंने खुद ने डाला है, बट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या डाला है खुद से। सो हम लोग क्या करेंगे, मैंने नया क्या डाला है उसके अंदर, दैट इज इंसर्ट ना। सो इंसर्ट के लिए यूज किया जाता है INS। INS लिखो यहाँ पे, क्या इंसर्ट किया है मैंने, स्टूडेंट। सो जस्ट क्लोज करो INS टैग। ओके, क्लोज करो, अभी सेव करो इसको एंड रन करो। सो सी INS से क्या होता है, अभी ये तुम लोग को इफेक्ट नहीं दिखाई देगा बिकॉज वी आर यूजिंग ए अंडरलाइन हियर। सो एक काम करो, अंडरलाइन जो है ना, अंडरलाइन जो है ना उसको यहाँ से हटा दो। ओके, सपोज
मैं यहाँ से अंडरलाइन को हटा रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मैंने अंडरलाइन को भी यहाँ से भी हटा दिया, ओके। सो सी व्हाट हैपन, वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो सी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन टैग को है ना निकाल दिया। सो इसमें क्या होता है, देखो सेव करो, रिफ्रेश करो, सी क्या दिख रहा है तुम लोगों को। मैंने अंडरलाइन हटा दिया, फिर भी ये अंडरलाइन ले रहा है, ओके। सी इट्स ओके कि मैं एक दया दया तरीके से दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारा खिचड़ी हो गया हम लोगों का। सो जस्ट मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड किया एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाई, हाई इंडिया, ओके। सो बाद में मुझे याद आया कि मुझे इंडिया नहीं डालना था, आई वॉन्ट टू इंसर्ट इंग्लैंड, ENGLND, ओके। सो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंडिया को डिलीट कर दूंगी एंड दैट्स व्हाई वी यूज अ डेल टैग, ओके। एंड यहाँ पे मैंने लिखा इंडिया, इंडिया को डिलीट किया एंड मैंने इंग्लैंड को डाल दिया। सेव कर रही हूँ, रन कर रही हूँ, सी अभी ये ऐसे नॉर्मल दिख रहा है। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने क्या डाला है वो भी देखना है मुझे। सो व्हाट आई एम इंसर्टिंग इंग्लैंड ना। सो मैं यहाँ पे INS लगाती हूँ एंड क्या इंसर्ट किया मैंने, इंग्लैंड। सो जस्ट क्लोज दैट INS, क्लोज INS, सेव करो। अभी देखो तुम लोग को पहले से दिख रहा था, कंट्रोल R किया, क्या दिख रहा है दोनों में। यानी डिलीट एंड इंसर्ट में डिफरेंस क्या है, डिलीट डिलीट कर देगा, इंसर्ट इंसर्ट कर देगा, और क्या इंसर्ट किया ना उसको हाईलाइट भी करेगा। सो दैट इज इंग्लैंड, ओके, क्लियर है। सो दीज आर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर एक और एक आता है, दैट इज अ फॉन्ट टैग। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉन्ट टैग। सो मैं इसको पहले सबको डिलीट कर देती हूँ। सो नेक्स्ट टैग पढ़ने वाले हम लोग, दैट इज फॉन्ट टैग। सो व्हाट इज फॉन्ट टैग। सो फॉन्ट का मीनिंग क्या होता है, सपोज यू वांट टू डेकोरेट योर फॉन्ट, फॉर एग्जांपल यू वांट टू कलर योर फॉन्ट, तुम लोग उसका साइज बढ़ाना है, तुम लोगों को उसका स्टाइल चेंज करना है, देन यूज ए फॉन्ट टैग। सो इनसाइड ए फॉन्ट टैग देयर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग। सो फॉन्ट के अंदर फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है, सो इट्स अ कलर। यू कैन चेंज द सीक्वेंस, ऐसे कंपल्सरी नहीं इसी सीक्वेंस में आना चाहिए। सो फर्स्ट इज कलर, सेकेंड होता है दैट इज साइज, and third one is face. So these three are the attributes of font tag: color, size and face, okay। so first अभी हम लोग देखते हैं what is the working of font tag। so first मैंने यहाँ पे simple HTML tag लिया एंड उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया यहाँ पे P एंड यहाँ पे मैंने सपोज लिखा इससे इंडिया, फर्स्ट पैराग्राफ हुआ मेरा इंडिया। मैंने फिर से एक पैराग्राफ लिया, उसके अंदर यहाँ पे लिख दिया मैंने इट्स ऑस्ट्रेलिया। देन सेकेंड अगेन एक मैंने टैग लिया यहाँ पे लिख दिया मैंने इट्स इंग्लैंड, दैट्स इट। ये 3 पैराग्राफ्स लिए मैंने, सेव कर रही हूँ, रन कर रही हूँ, से ऐसे आ रहा है। सो बट इन फ्यूचर मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि मुझे हर एक का कलर चेंज करना है, उसका साइज थोड़ा बढ़ाना है। सो इन दैट सिनारियो वी यूज ए फॉन्ट टैग। सो सी मैंने यहाँ पे फॉन्ट टैग अप्लाई किया एंड फॉन्ट टैग मुझे अप्लाई करना है किसके ऊपर। सो फर्स्ट मैं पैराग्राफ 1 के ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ। सो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। सो अभी देखो रन करके देखो, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। वाई, बिकॉज हम लोगों ने फॉन्ट के एट्रीब्यूट ही यूज नहीं किए। सो फॉन्ट का फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है कलर, मुझे कौन सा कलर चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया रेड, सेव करो, कंट्रोल R, सी हो गया रेड में कन्वर्ट। तुम लोगों को उसका साइज बढ़ाना है, सो मैंने यहाँ पे लिया सी साइज। सो सी फॉन्ट का लास्ट साइज 7 होता है, सो 7 से ज्यादा मत दो। सपोज मैंने यहाँ पे लिया 7, सेव किया, पहले ऐसे दिख रहा था, कंट्रोल R किया, ऐसे दिखेगा, ओके। सपोज 7 में ऐसे दिख रहा है, तुम लोगों ने बाद में लिया कि नहीं मुझे 8 चाहिए, 8 किया, सेव किया, पहले ऐसे दिख रहा था, कंट्रोल R, सी वैसे ही दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर मैंने 7 से कम लिया ना, यहाँ पे सेव करो एंड देन रन इट, सी वो कम हो जाएगा। सो मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इज 7, ये याद रखो। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है फेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस। सो तुम लोग पढ़ते हो नोटपैड के अंदर, राइट, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, अल्जीरियन, दीज आर द स्टाइल्स। सो उसी को फॉन्ट के लैंग्वेज में फेस कहा जाता है। सो आई एम यूजिंग इट एज अ कैम्ब्रिया, सेव किया मैंने, पहले ऐसे दिख रहा था, कैम्ब्रिया करने के बाद ऐसे दिखेगा, ओके। सो ये फेस चेंज करता है अपने फॉन्ट का। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉन्ट यहाँ पे क्लोज ही नहीं किया, आप भूल गए फॉन्ट को क्लोज करना, तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो कॉमन फॉर्मेटिंग सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ओके। बट मुझे क्या करना है, हर एक के लिए अलग अलग फॉन्ट अप्लाई करना है। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे उस फॉन्ट को क्लोज कर दो, यहाँ पे एक नया फॉन्ट टैग ओपन करो, ओके। एंड मुझे अभी क्या करना है, इस फॉन्ट टैग के अंदर इसकी भी अलग से एट्रीब्यूट सेट करने। सो आप चेंज करते हो साइज, ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि सीक्वेंस यही आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया 6 होना चाहिए, कलर मैंने यहाँ पे लिया, इसका कलर ब्लू होना चाहिए, एंड जो फेज है इसका, सो मैंने यहाँ पे दिया, ये मुझे एज अ अल्जेरियन चाहिए, ओके।
सो दैट्स इट। अभी ये मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ के ऊपर लगाना है, यहाँ पे क्लोज किया, फिर से एक नया फॉन्ट टैग ओपन किया। ओके, इस फॉन्ट टैग के अंदर मैंने यहाँ पे कलर लगा दिया, इट्स ग्रीन। देन मुझे इसका फेस लगाना है, सो मैंने यहाँ पे फेस कर दिया। कुछ भी लिखो, तुम लोगों को जो आइडिया है वैसे लिखो। सपोज एरियल होता है, मैंने यहाँ पे एरियल किया। देन मुझे इसका साइज देना है, सो मैंने सपोज साइज यहाँ पे 4 ही दे दिया, दैट्स इट। एंड ये फॉन्ट किसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, लास्ट पैराग्राफ के ऊपर। सो मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ फॉन्ट को। जस्ट सेव करो एंड कंट्रोल आर रिफ्रेश करो, सी हो गया। सो ऐसे तुम लोग हर एक टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो, दैट इज फॉन्ट टैग, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, क्लियर है सबको। देन नेक्स्ट, फॉन्ट टैग तो हो गया। नेक्स्ट होता है मार्क्यू टैग। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ मार्क्यू टैग। सो उससे पहले एक बेसिक टैग रह गया हम लोग का बी आर, वो बताती हूँ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ बी आर। सपोज मैंने एक नॉर्मल HTML का पेज क्रिएट किया एंड मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिखा इट्स हाई कोडर्स। ओके, एंड इसके अंदर नीचे लिख दिया मैंने, सपोज यहाँ पे किया मैंने इट्स हाई कोडर्स। यहाँ पे लिख दिया मैंने इट्स हाई डेवलपर्स। ओके, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने इट्स हाई टेस्टर्स, दैट्स इट। अभी इसको मैं सेव कर रही हूँ एंड रन कर रही हूँ। सी, ये एक ही लाइन में आ रहा है। सी, अभी आई डोंट नो कि ये मेरा ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन लेता है, बट HTML का क्या है ना कि अगर आप लोगों ने न्यू लाइन पे लिखा ना, फिर भी वो एक ही लाइन पे देगा। सो मेरी रिक्वायरमेंट है नहीं, हाई कोडर्स एक लाइन पे आना चाहिए था, हाई डेवलपर्स दूसरी लाइन पे आना चाहिए था, एंड हाई टेस्टर्स न्यू लाइन पे आना चाहिए था। तो उसके लिए HTML के अंदर बी आर टैग यूज किया जाता है। सेव इट, कंट्रोल आर। सो बी आर का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक द लाइन। ओके, तुम लोग जितने ज्यादा बी आर दोगे उतना आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 BR लगा दिए, सेव कर रही हूँ। ओके, पहला वाला ऐसा दिख रहा था, अभी मैंने रन किया तो सी ऐसे दिखेगा। सो BR मीन्स तुम लोग जितनी टाइम BR दोगे ना उतनी न्यू लाइन लेगा वो। क्लियर है यहाँ तक। सो दैट इज BR टैग। सो नेक्स्ट टैग होता है प्री टैग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री टैग। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है। सपोज मैंने यहाँ पे किसी C लैंग्वेज का कोड लिखा है, इट्स इंक्लूड stdio.h। जस्ट एक रेफरेंस के लिए पढ़ो, हम लोग को C नहीं पढ़ना है यहाँ पे। सो जस्ट एक कोड लिखना है मुझे यहाँ पे, इसलिए मैंने लिख दिया इट्स stdio। देन यहाँ पे एक सिंपल लिखा मेन एंड जस्ट यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया यहाँ पे, इट्स हाई कोडर्स, दैट्स इट। दैट एक सिंपल सा कोड है, सेव किया। तो आई डोंट नो, मेरे एडिटर अपने आप ही एडिट होता जा रहा है। सो जब भी तुम लोगों ने जैसा फॉर्मेटिंग दिया है वैसे प्रोवाइड करना होगा। सो इन दैट केस सपोज मैंने ऐसे लिखा है तो मुझे आउटपुट पे वैसे ही आना चाहिए, तो वो वैसे नहीं आता है। सो इन दैट केस वी यूज ए प्री टैग। सो प्री का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ प्री फॉर्मेटेड टैग। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही एज इट इज आउटपुट के स्क्रीन पे आना चाहिए, दैट इज प्री। ओके, सो जस्ट यहाँ पे क्लोज करो, सेव करो एंड अभी रन करके देखो, जैसे आप लोगों ने लिखा है वैसे ही यहाँ पे आएगा। ओके, सो दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ प्री। प्री मीन्स व्हाट, इट्स अ प्री फॉर्मेटेड टैग, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आना चाहिए। और यू कैन यूज ए कोड टैग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल किसी डेवलपर का कोड आपने यहाँ पे लिखा है, वो आपको इंसर्ट करना है ना, देन वी यूज ए कोड टैग। सो कोड का मीनिंग क्या होता है, वो भी सेम एक ही लाइन पे आएगा, बट जो वे ऑफ राइटिंग है ना वो थोड़ा चेंज होगा। देखो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। सो ये एक स्टैंडर्ड है कि वेबसाइट ने आपको दिया है कि आपको कोई भी कोड वगैरह इंसर्ट करना होगा ना दूसरी लैंग्वेज का, देन यूज ए कोड टैग। ओके, दैट इज द पर्पज ऑफ कोड टैग। अदरवाइज बाकी कुछ खास ऐसे उसका कुछ अलग से पर्पज नहीं है। ओके, सो फर्स्ट नेक्स्ट आता है इट्स अ मार्क टैग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्क, उसके नाम के जैसा ही है, मुझे कोई हाईलाइट करना होगा पर्टिकुलर सेंटेंस या स्टेटमेंट, देन वी यूज ए मार्क टैग। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक H1 हेडिंग लिखा एंड इसके अंदर लिखा हाई टेक्नोवेल एजुटेक। एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे, इट्स ए हाई टेक्नोवेल एजुटेक करके लिखा। डन। सो जस्ट सेव इट एंड रन करो इसको। सो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी हाई टेक्नोवेल एजुटेक। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ना, इसमें इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, टेक्नोवेल। सो मुझे उसको है ना थोड़ा हाईलाइट करना है। ओके, सो हाईलाइट मीन्स योर मार्क टैग। सो जस्ट मार्क करो यहाँ पे। ओके, एंड मुझे क्या करना है, सो जस्ट इसको कट करो यहाँ से, बिकॉज मुझे मार्क टेक्नोवेल के ऊपर अप्लाई करना है। सो आफ्टर टेक्नोवेल वो कट होना चाहिए। जस्ट सेव करो, कंट्रोल आर रिफ्रेश करो, सी व्हाट हैपन, हो गया ना मार्क। सो मार्क का मीनिंग क्या होता है, जस्ट हाईलाइट द टेक्स्ट। ओके, तो दैट इज मार्क्स। सो दीज आर द बेसिक टैग्स। ये सारे हम लोग कवर करेंगे बाद में, थोड़ा उसकी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे जब CSS कवर होगा तब। ओके, देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट टैग आता है इसके अंदर, दैट इज स्ट्राइक। तो हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट आता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर स्क्रिप्ट। सो सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है SUP
एंड सबस्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है इट्स SUB. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट? जब भी तुम लोगों को कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है, सी, जब भी तुम लोगों को कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है, देन वी यूज ए SUP, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट. एंड जब भी तुम लोगों को कोई साइंटिफिक फॉर्मूला लिखना है, देन वी यूज ए सब, दैट इज सबस्क्रिप्ट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है A² + B², सो दैट इज योर मैथमेटिकल फॉर्मूला. एंड सबस्क्रिप्ट में सपोज मुझे वाटर का फॉर्मूला लिखना है H2O, सो दैट इज माई साइंटिफिक फॉर्मूला. सो उस केस में हम लोग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट को यूज करते हैं. सो सी हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. मैंने यहाँ पे एक HTML का टैग लिया, देन सिंपल यहाँ पे मैं H4 करके लिखती हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा हेडिंग नहीं चाहिए. एंड मैंने यहाँ पे लिखा इट्स H2O. ओके, यहाँ पे लिखा मैंने इट्स H2O. जस्ट सेव करो, अभी रन करो. सो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी H2O. बट मुझे जैसे प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए ना, वैसे नहीं आया वो. सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 2 है ना, वो बेस में आना चाहिए. सो दैट इज सब पार्ट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सब. क्या बेस में आना चाहिए था 2, सो मैंने 2 को यहाँ पे हटा दिया. सेव करो, कंट्रोल रिफ्रेश करो, आ गया. सो दैट इज सबस्क्रिप्ट. एंड फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक कर देती हूँ. एंड मुझे एक फॉर्मूला लिखना है A² + B² = C². ओके, सो ये फॉर्मूला लिखना है. बट अगर मैंने इसको रन किया ना, ये नॉर्मल वे से दिखाई देगा. सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस फॉर्मूला में, अभी इसको भी मैं थोड़ा हेडिंग करके नोटिफाई करती हूँ. सो इसको मैंने H3 किया. सो H3 मीन्स H4 से थोड़ा बड़ा आएगा. एंड यहाँ पे मैंने उस H3 को क्लोज किया. ओके, सो जस्ट सेव करो, कंट्रोल रिफ्रेश करो, हो गया. अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो 2 है ना, वो ऊपर जाना चाहिए. सो ऊपर मीन्स ऊपर. अच्छा है ना कॉन्सेप्ट, ऊपर सुपर. ओके, सो सब यूज किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए. सो मुझे सुपरस्क्रिप्ट में क्या चाहिए, इट्स 2. सो जस्ट ओपन इट एंड देन क्लोज इट. क्या ऊपर आना चाहिए था मुझे, 2. ओपन किया, क्लोज किया, डन. इट्स क्लोज. देन नेक्स्ट इज सेम यही अप्लाई करना मुझे इस 2 में भी. सो मैंने सबस्क्रिप्ट को ओपन किया एंड देन क्या करना है मुझे, उसको क्लोज करना है. यहाँ पे क्लोज किया, अगेन SUP ओपन किया, 2 लिख दिया यहाँ पे, इसको क्लोज किया, डन. यहाँ पे हो गया ये. जस्ट सेव करो इसको एंड अभी रन करो. सो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी A² + B² = C². ओके, सो दैट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. क्लियर है यहाँ तक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट. सो ये सारे बेसिक टैग्स है जो HTML के अंदर आएंगे. नेक्स्ट फॉन्ट हुआ हम लोगों का. नेक्स्ट आता है इट्स अ मार्क्यू टैग. सो व्हाट इज मार्क्यू. सी, तुम लोग बस में बैठते हो तो वहां पे दिखता है नेक्स्ट वाला स्टॉप ही आएगा. सो वो जो आता है ना, दैट इज इन ए मोशन. उसका एक कुछ तो मूवमेंट होता है, वो यहाँ पे वहां पे ऐसे घूमता है, दैट इज कॉल्ड एज एनिमेशन. सो बेसिक लेवल का एनिमेशन HTML में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज मार्क्यू टैग. सो सी सिंपल, मैंने एक HTML का पेज यहाँ पे क्रिएट किया एंड उसके अंदर मैंने एक हेडिंग लिखा H1 एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ इट्स अ चिंचवड. ओके, जस्ट सेव किया मैंने एंड रन किया. सो सी चिंचवड एज इट इज आया. सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ से वहाँ पे वो थोड़ा मूव होना चाहिए. सो हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट मीन्स मार्क्यू. एंड मार्क्यू किसके ऊपर अप्लाई करना है तुम लोगों को, दैट इज ऑन ए चिंचवड ना. सो जस्ट कट करो इसको एंड यहाँ पे आके पेस्ट करो, सेव करो एंड कंट्रोल रिफ्रेश करो. सी मूव हो रहा है वो. ओके, सो दैट इज मार्क्यू. अभी मार्क्यू में क्या हो रहा है, देखो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड में जा रहा है. थोड़ा वेट करते देखते उसका एनिमेशन कैसे हो रहा है. लेफ्ट में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चला गया. अभी फिर से वो राइट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट में जा रहा है. ओके, सो सी मार्क्यू के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स आते हैं. फर्स्ट इज डिरेक्शन, सेकेंड इज बिहेवियर एंड फोर्थ वन इज स्क्रोल अमाउंट. सो बाय डिफॉल्ट जो डिरेक्शन होता है दैट इज लेफ्ट, बिकॉज वो लेफ्ट साइड में जा रहा है. बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है दैट इज स्क्रोल. स्क्रोल का मीनिंग क्या होता है, कोई लूप क्रिएट करेगा. ओके, सो फर्स्ट मार्क्यू के अंदर आता है डिरेक्शन. सो बाय डिफॉल्ट डिरेक्शन क्या होता है, इट्स लेफ्ट. बट मुझे लगा नहीं, लेफ्ट में नहीं, वो राइट में जाना चाहिए. सो मैं यहाँ पे डिरेक्शन चेंज कर दूंगी, दैट इज राइट. सेव करो, रन करो. सी अभी वो कहाँ पे जा रहा है, देखो राइट में जा रहा है ना. सेकेंड, मुझे उसका बिहेवियर चेंज करना है. सो सी डिरेक्शन के अंदर 4 डायरेक्शन आते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन. ओके, इट्स अ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन. सो बिहेवियर के अंदर आता है स्क्रोल. बाय डिफॉल्ट तो स्क्रोल ही होता है. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लाइड. सी मैंने क्या लिखा, स्लाइड. बिहेवियर के अंदर 3 आते हैं,
स्क्रोल स्लाइड एंड ऑल्टरनेट, मैंने इसको रन किया, राइट साइड में जा रहा है। सी हम लोग ने स्लाइड अप्लाई किया ना, स्लाइड से क्या होता है देखो, सी व्हाट हैपन, स्लाइड से क्या हुआ, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके रुक गया। सो इंस्टेड ऑफ स्लाइड मैं यहाँ पे यूज करूंगी ऑल्टरनेट, एंड मैं ना थोड़ा स्पीड बढ़ाती हूँ उसका, तो उसके लिए यूज करते हैं स्क्रोल अमाउंट, बिकॉज ये बहुत ही धीरे से चल रहा है। एंड स्क्रोल अमाउंट यहाँ पे दिया मैंने 50, सेव करो एंड रन करो, सी व्हाट हैपन, जा रहा है ना जोर से, देखो ऑल्टरनेट से क्या हो रहा है ना। सो स्क्रोल का मीनिंग क्या होता है, क्रिएट ए लूप, वो ऐसे राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा। ऑल्टरनेट का मीनिंग सेम पेज पे यहाँ से वहां पे घूमेगा। एंड स्लाइड का मीनिंग क्या होता है, एक डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, एक डायरेक्शन पे जाके रुक जाएगा, सो दैट इज स्लाइड। ओके, सो दिस इज द मार्क्यू टैग विच का यूज, जिसका यूज किया जाता है जस्ट एक बेसिक लेवल का एनिमेशन तुम लोगों को अगर क्रिएट करना होगा तो। ओके, देन नेक्स्ट टैग आता है एचआर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये तो लिया, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि समहाउ मुझे उसको सेपरेट आउट करना है। सो एचआर का मीनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो। सी मैंने यहाँ पे एक एचआर अप्लाई किया। सी एचटीएमएल के अंदर एचआर, बीआर, इमेज, ये ऐसे टैग्स है ना जिनको तुम लोग को क्लोज नहीं करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई ना। अभी एचआर के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या लगता है कि मुझे उस लाइन का हाइट बढ़ाना है। ओके, आई वांट टू, जो बहुत ही पतला सा दिख रहा है लाइन, सो आई वांट टू इंक्रीज इट साइज। तो साइज में मैंने यहाँ पे दिया कि 40 होना चाहिए बाबा, सेव इट, कंट्रोल आर। ओके, सो सी ये 40 हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक। अभी क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर है ना कलर ऐड करते हैं, तो तुम लोग को इजीली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। सी आ गया रेड कलर का। ओके, एंड देन नेक्स्ट इसके अंदर विड्थ एक एट्रीब्यूट होता है। सो बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है ना उसका 100% होता ही है, बट सपोज मैंने 50 दिया। सो 50 का मीनिंग क्या होता है, वो है ना सेंटर से डिवाइड हो जाएगा। इट्स 50 पिक्सल में आ गया। अभी मैं परसेंटेज में देती हूँ। सो उसका मीनिंग क्या होता है, वो सेंटर से डिवाइड हो जाएगा 50-50% में। ओके, इट्स नॉट लाइक कि लेफ्ट से स्टार्ट होगा, वो सेंटर से 50% चला जाएगा। सो दैट इज एचआर, जिसका यूज आप दो पार्ट्स में डिवाइड करना है स्क्रीन को, तो एज ए यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है इट्स एब्रीविएशन टैग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन। सो जस्ट इसको मैं डिलीट करती हूँ। सो सिंपल, सपोज मैंने यहाँ पे HTML का अपना पेज लिया, एंड यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखा H1, जस्ट उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इट्स HTML, जस्ट ओपन किया, क्लोज किया, सेव किया, रन किया। ओके, सो मुझे क्या करना है, इसी के रिलेटेड कोई एब्रीविएशन लगाना है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ HTML के रिलेटेड, मैंने सपोज यहाँ पे ABR टैग यूज किया, दैट इज एब्रीविएशन, ABBR। ओके, एंड यहाँ पे मैंने HTML का डेफिनेशन प्रोवाइड किया सपोज। सो एब्रीविएशन में एक तुम लोगों को एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, दैट इज टाइटल, एंड मैंने यहाँ पे लिखा इट्स hypertext markup language, that's it, सेव किया मैंने यहाँ पे, एंड आई वांट टू क्लोज इट। सो जस्ट सेव करो एंड इसको रन करो। सो सी व्हाट हैपेंड, इट नथिंग, इट्स क्या किया मैंने, इट्स HTML को किया। सो एब्रीविएशन यहाँ पे क्लोज मत करो, इट्स फॉर HTML ना, सो जस्ट क्लोज इट आफ्टर HTML। सो जस्ट क्लोज दैट एब्रीविएशन, सो सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश करो। सो सी आगे यहाँ पे, सो एब्रीविएशन मीन्स व्हाट, सी जब तुम लोग HTML के ऊपर जाओगे ना, सी वहां पे जाने के बाद तुम लोगों को वो उसका जो हम लोगों ने एब्रीविएशन दिया था वो दिखाई दे रहा है, इट्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ओके, सो दैट इज एब्रीविएशन टैग। देन मार्क टैग तो हो गया हम लोगों का। सो नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज का डेफिनेशन प्रोवाइड करना है, देन यूज ए डेफिनेशन टैग। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स HTML, क्लोज किया, ओपन किया। सो मुझे क्या करना है, HTML का डेफिनेशन दिखाना है। सो इन दैट केस HTML इज माई मेन टैग ना, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इट्स DFN, डेफिनेशन के लिए यूज किया जाता है, इट्स DFN। मुझे डेफिनेशन दिखाना है, किसका डेफिनेशन दिखाना है, सो मैंने यहाँ पे लिखा HTML। ओके, सो मैंने नॉर्मल HTML लिखा ना, सो वो नॉर्मल वे से दिखेगा, बट सी HTML अरे ऐसे थोड़ा टिल्ड करके आएगा। एंड देन बाद में तुम लोग उसका डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्क
अ लैंग्वेज। सो जस्ट सेव करो, GUAG, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रिफ्रेश करो, सी आ गया। सो तुम लोग को हाईलाइट हो जाएगा ना कि HTML इज ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसमें से HTML थोड़ा अलग सा दिख रहा है। सो दैट इज द डेफिनेशन टैग। नेक्स्ट होता है कोटेशन। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटेशन? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इट्स अ HTML stands for hypertext markup language। मैंने यहाँ पे लिखा HTML stand for hypertext markup, एंड इसमें से मुझे क्या करना है, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ना उसको मुझे डबल कोड देना है। सो मैंने यहाँ पे तो कोड दिया, यहाँ पे कोड दे दिया। तो जस्ट सेव करो एंड यहाँ पे आके मैंने रन किया। सो सी, जैसे हम लोगों ने लिखा है ना वैसे ही दिख रहा है, बट मेरी रिक्वायरमेंट ये कोटेशन ऐसे नहीं दिखना चाहिए। सो इन दैट सिनारियो वी यूज ए क्यू टैग फॉर कोटेशन, एंड ये क्यू किसके ऊपर लगाना है मुझे, पूरे लैंग्वेज तक। सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसको कट करो बिकॉज ये वहां पे लगाना है ना तुम लोग को। सो जस्ट कट इट। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी इसका दिस वन इट्स अ क्लोज क्यू। सेव करो एंड कंट्रोल आर। पहले ऐसे दिख रहा था, देखो अभी मैंने ऐसे किया, कैसे दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूँ, सी व्हाट हैपन। उसका सिंटैक्स चेंज हो गया ना, गिव्स यू प्रॉपर कोटेशन। So that is the working of quotation marks. Okay, then next is ये हुए बेसिक टैग्स है एक एक लाइन की जो HTML के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मुझे HTML के अंदर लिस्टिंग क्रिएट करना होगा। सो लिस्टिंग के लिए li टैग यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगेन लिस्टिंग के अंदर दो टाइप की लिस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इट्स OL लिस्ट, दैट इज ऑर्डर लिस्ट, एंड सेकेंड लिस्टिंग आता है दैट इज अनऑर्डर लिस्ट। ओके, सो OL ऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट। तो अभी सबको वन बाय वन देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रीज के नाम चाहिए, सो मैंने यहाँ पे लिखा है HTML, एंड HTML इसके अंदर मैंने सपोज आई वांट टू इंसर्ट कंट्री नेम, सो मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री नेम्स। ओके, जस्ट एक हेडिंग दिया, इसको रन कर रहे, ऐसे दिखेगा। अभी मुझे क्या करना है, वो कंट्रीज के जो नेम है ना, ओके, जो कंट्रीज का नेम है, सो देखिए मेरा नॉर्मल साइज है, उसके अंदर मुझे कुछ लिस्टिंग प्रोवाइड करनी है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इट्स इंडिया, इंडिया। सेकेंड टाइम यहाँ पे लिखा सपोज मैंने इट्स ऑस्ट्रेलिया। थर्ड टाइम यहाँ पे लिखा मैंने इट्स इंग्लैंड। नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इट्स चाइना। ओके, सेव किया मैंने एंड रन किया। सो सी मुझे ऐसे दिखाई देगा, वो प्रॉपर लिस्टिंग में नहीं दिखाई देगा। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इसके ऊपर लिस्ट लगाना है। सो मैं यहाँ पे यूज करूँगी, कौन सा लिस्ट लगाना है, सपोज मुझे ऑर्डर लिस्ट लगाना है। सो ऑर्डर लिस्ट में ओके, सो मुझे क्या करना है, इसके अंदर OL लगाना है। सो OL मैंने यहाँ पे लगा दिया। सी OL के अंदर मेरा पहला लिस्ट होगा दैट इज इंडिया। ओके, सो अभी क्या करना है, दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट, वो कौन सा होगा, दैट इज इंडिया। सो मैं फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ क्लोज LI। देन फिर से मुझे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर LI लगाना है। ओके, सो मैं इसी को कट करती हूँ यहाँ से, Ctrl+X, एंड इसको मुझे पुट करना है ऑस्ट्रेलिया के बाद। सो Ctrl+V, अगेन इंग्लैंड के ऊपर लगाना है LI। ओके, देन यहाँ पे लगाती हूँ मैं इट्स Ctrl+V, एंड अगेन चाइना के ऊपर लगाना है, सो दैट इज LI, एंड चाइना के बाद भी मुझे यहाँ पे करना है इट्स Ctrl+V, एंड देन बाद में हम लोग OL को क्लोज करेंगे। सेव करो इसको एंड रन करो, सी व्हाट हैपन, आ गया ना प्रॉपर लिस्टिंग। ओके, सो दैट इज ऑर्डर लिस्ट, एंड ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट होता है इट्स 1 2 3 4। बट अगर तुम लोगों को लगता है नहीं, तुम लोगों को 1 2 3 4 चेंज करना है, देन राइट डाउन OL टाइप इक्वल टू। सो तुम लोग इसमें 1 2 3 4 स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, रोमन I ऐसे पास कर सकते हो। सो मैंने सपोज यहाँ पे रोमन I पास किया, सेव किया एंड रन किया। सो सी व्हाट हैपन, चेंज दिख रहा है तुम लोगों को, रोमन में आ गया। तुम लोगों को लगता है नहीं कैपिटल में देना है, सेव करो एंड रन करो, सी कैपिटल में आ जाएगा। तुम लोगों को लगता है कैपिटल ABCD में देना है, कैपिटल ABCD दो, कैपिटल ABCD में आ जाएगा। तुम लोगों को लगता है स्मॉल ए में देना है, स्मॉल ए दो, स्मॉल ए में आ जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर लिस्ट के लिए दिए हुए होते। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट के जैसे ही सेकेंड आता है
दैट इज यूएल टैग, जिसका यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। सो अनऑर्डर लिस्ट में भी बाय डिफॉल्ट जो है वो डिस्क होता है। सपोज मैंने यहाँ पे यूएल ओपन किया, देन मैं यहाँ पे उसको क्लोज कर रही हूँ। तो जस्ट सेव करो, कंट्रोल आर रिफ्रेश करो, सी ये बाय डिफॉल्ट जो आएगा फॉर्मेटिंग दैट इज डिस्क। सो डिस्क का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ फील्ड सर्कल। So there are three types available inside a UL. So first is disk, second type is square. So just write down square, save it and run it. So it gives you filled square. Okay, so save it. It's a type का spelling wrong लिखा है मैंने. So it's a type. Just save it, run it. So see what happened. It gives you filled square. Instead of square, I'm writing here as a circle. Save it and run it. See what happened. It gives you empty circle. ओके बट दूसरा कोई शेप ट्राई मत करो बिकॉज इसके अंदर 3 होते हैं। इट्स अ रेक्टेंग, इट्स अ स्क्वायर, सर्कल एंड डिस्क। so just save it and run it. See what happened. It gives me disk again. Okay, so inside a UL type there are 3: disk, सर्कल एंड स्क्वायर। डिस्क नहीं देखा हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्क लगा दिया, सी व्हाट हैपेंड, इट गिव्स मी डिस्क। सो देयर आर 3: डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट द यूएल टैग, दैट इज अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट आता है दैट इज डेफिनेशन टैग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्री लिखनी है या कुछ भी करना है तो हम लोग कैसे ना थोड़ा मार्जिन वगैरह सेट करते। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है HTML, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी HTML एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डेफिनेशन इसे प्रोवाइड करते हैं, नीचे इसे थोड़ा मार्जिन वगैरह रखेंगे। सो इट बिकम्स हेक्टिक इनसाइड HTML। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो जस्ट सेव इट एंड रन करो। सी ये ऐसे दिख रहा है। ओके, सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में दिखना चाहिए। सो यहाँ पे यूज किया जाता है DL टैग। सो इट्स अ DL, डेटा डेफिनेशन डेटा लिस्ट टैग। मैंने DL यहाँ पे ओपन किया। सो DL टैग जो है उसके अंदर अगेन 3 टैग आते हैं। सो मैं यहाँ पे DL को क्लोज करूँ। सो फर्स्ट जो तुम लोगों को टाइटल देना है दैट इज योर DT, डेटा टाइटल। सो जस्ट ओपन करो। सो मुझे टाइटल क्या देना है, दैट इज HTML एंड डेटा डेफिनेशन दैट इज उसके अंदर क्या डेटा तुम लोग लिखोगे। सो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से कट करती हूँ। सो जस्ट कंट्रोल X एंड यहाँ पे लगाना है इट्स अ कंट्रोल V। अभी मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड देन कंट्रोल R रिफ्रेश करो। सी व्हाट हैपन, करेक्ट है ना। सो इट गिव्स यू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, that's why we use a DL tag, that is data list tag. Okay, so these are the types of list. So first is OL, that is order list, UL that is unordered list, and next होता है DL that is descriptive list, or you can say it as a description list, or you can say it as a definition list also. Okay, so this is about the list. So next tag आता है that is tables tag. So what is table? If you want to create a table inside a HTML, then we use a table tag. So what is the purpose of table tag? First we are using a HTML tag. Inside a HTML tag we are created a table. Okay, and see inside a table there are multiple subtags. So first tag is TR, that is table row. So मेरा जो फर्स्ट रो है उसमें ऑलमोस्ट हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके अंदर, इसे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट, वॉट एवर जो भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा वो। सो सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट इट फॉर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो फर्स्ट रो ऑलवेज रिजर्व फॉर हेडिंग। सो उसके लिए यूज किया जाता है TH। सो मेरा पहला हेडिंग क्या होगा, सो दैट इज रोल नंबर। सो मैंने पहला हेडिंग क्लोज किया। सेकंड हेडिंग क्या होगा, दैट इज नेम। एंड डोंट राइट हेडिंग टैग कॉमन टू ऑल, वो सबके लिए अलग लेना पड़ेगा, रोल नंबर के लिए अलग, नेम के लिए अलग। देन नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सो आई वांट टू इंसर्ट ए मार्क्स ना। सो मैंने अगर एक नया हेडिंग लिया एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे लगा दिया इट्स अ मार्क्स। जस्ट सेव इट एंड रन करो। सी दिख रहा है, बट तुम लोग बोलोगे यहाँ पे टेबल का पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, देयर इज नो बॉर्डर। वाई, बिकॉज हम लोगों ने दिया नहीं, जितना हम लोग देंगे उतना ही वो लेगा। सो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, मुझे उसके अंदर बॉर्डर देना है, आ गया बॉर्डर। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने 2 दिया इसलिए 2 आया, मैंने 1 दिया होता तो भी वो 2 ही लेता। So it gives me boldness of that particular border. Okay, so see अभी हम लोग थोड़ा उसके अंदर डेटा ऐड करते हैं। So second, फर्स्ट रो में मैंने हेडिंग ऐड किए। So TR पहला क्लोज किया।
सेकेंड रो पे मुझे क्या करना है, डेटा ऐड करना है। सो इट्स अ टीडी, डेटा के लिए टीडी यूज किया जाता है। सो रोल नंबर 1 मैंने ऐड किया, नेक्स्ट मैंने टीडी दिया, इसके अंदर नाम आकाश ऐड किया, एंड देन फिर से मैंने ओपन किया टीडी, एंड मैंने इसके अंदर उसके मार्क्स ऐड किए टी। ओके, सो ऐसे मुझे और डेटा ऐड करना है। सो मैंने ये फर्स्ट वाला रो कॉपी किया, एंड देन मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट किया। सो व्हाट हैपन, आई थिंक मेरा टेबल का टैग का जो है वो ऊपर ही चला गया। सो जस्ट क्लोज करो इसको। सो दिस इज माय सेकंड रो। ओके, सो टी आर इट्स अ 2, मैंने यहाँ पे नाम लिखा निमिष, यहाँ पे लिख दिया मैंने 85। सो जस्ट सेव करो अभी, एंड आई वांट टू रन इट, सी व्हाट हैपन। दिख रहा है? अभी तुम लोग बोलोगे इसमें डबल वो लाइन क्यों आ रहा है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, इट्स ओके। टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सी फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉर्डर, सेकेंड एट्रीब्यूट होता है इट्स सेल पैडिंग। सो सेल पैडिंग मीन्स सेल के अंदर का डिस्टेंस। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग मीन्स बाहर का डिस्टेंस। उसके बाद एट्रीब्यूट होता है विड्थ, नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है इट्स हाइट, एंड एक और एट्रीब्यूट होता है दैट इज बीजी कलर, बैकग्राउंड का कलर, या तुम लोग बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो। सो सेल्फ पैडिंग का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ इंटरनल डिस्टेंस। सपोज मैंने यहाँ पे दिया इट्स अ 5। सेल स्पेसिंग, सेल के बाहर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मैंने यहाँ पे भी दिया 5। मेरा जो टेबल है उसका विड्थ कितना होना चाहिए, मैंने यहाँ पे दिया 100 पिक्सल। हाइट कितना होना चाहिए, मैंने यहाँ पे दिया 100 पिक्सल। एंड जो भी बैकग्राउंड है उसका कलर कौन सा होना चाहिए, सो मैंने बैकग्राउंड में कलर यहाँ पे दे दिया, सपोज आई वांट टू इंसर्ट ए ग्रे कलर। जस्ट सेव करो एंड देन रन इट, सी व्हाट हैपन। आ गया, तुमके टेबल के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया तुम लोगों की। ओके, सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, सपोज मैंने बीजी कलर यहाँ से हटा दिया, अगर मैंने इसको रन किया सो सी ऐसे दिख रहा है। सो तुम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो जो टेबल का विड्थ थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग, वो प्रॉपर दिखेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिया इट्स 150, सो जस्ट सेव इट एंड रन इट। ओके, व्हाट हैपन, विड्थ इक्वल्स टू इट्स 100, इट्स अ पिक्सल, एंड जो हाइट है वो होगा इट्स 100 पिक्सल अगेन। सो जस्ट सेव इट एंड रन इट, नो चेंजेस। कुछ थोड़ा और बढ़ाती, इट्स 300 मैंने लिया पिक्सल, हाइट भी लिया इट्स 300 पिक्सल। सो जस्ट सेव करो इसको, देन रन इट। ओके, सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, मुझे ये जो डबल बॉर्डर दिख रहा है ना वो नहीं चाहिए। सो उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ सेल स्पेसिंग। सो दोनों सेल के बीच का स्पेस है ना उसको 0 करो, वो डबल बॉर्डर ना वो चला जाएगा, सी। ओके, सो दिस इज योर टेबल। यस, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट थिंग तुम लोग को रखता है नहीं, फर्स्ट रो है ना उसको थोड़ा हाईलाइट करना था। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगी इट्स अ बीजी कलर, इसके बैकग्राउंड में कलर देती हूँ ग्रे। सेव इट, कंट्रोल आर रिफ्रेश करो, कलर क्यों नहीं है, इट्स अ बीजी कलर, सो सी, सेव इट, कंट्रोल आर रिफ्रेश करो, आ गया। सो ऐसे तुम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द टेबल। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल कोई अलग लेवल का टेबल मुझे क्रिएट करना है, अलग लेवल इन द सेंस सपोज मेरे पीडीएफ में यहाँ पे है, या इट्स ओके, तुम लोगों को मैं पेंट पे ही करके दिखाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम लोग कोई टाइम टेबल वगैरह डिजाइन करने के लिए जाओगे, सो उस टाइप का हम लोगों को यूज करना पड़ता है। सो सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया ऐसे। सो उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने, दिस वन। ओके ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट रो, डन। सो यहाँ में मैं क्या लिखूंगी, एंड यहाँ पे मैंने यही कॉलम है ना उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करना है मुझे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक कॉलम ड्रॉ किया। ओके, सो दिस वन। ओके, सो थोड़ा समझ लो, ड्राइंग अच्छा नहीं है मेरा इतना। ओके, सो नेक्स्ट मैंने इसके अंदर फर्स्ट क्या लिखना है मुझे इसके अंदर, सो आई वांट टू एंटर इन नेम ऑफ द स्टूडेंट। सो मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, एंड देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे यहाँ पे ना हर एक बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था। सो मैंने यहाँ पे लिखा
ओके, सो थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं हम लोग। सो जस्ट एक विजुअलाइज, एक कंसिडर करो कि मुझे इस लेवल का स्ट्रक्चर चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा इट्स अ कॉन्टैक्ट नंबर, दैट इट्स ए कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो ऐसे मुझे दिख रहा है। सो अभी मैं क्या करूंगी, जब मेरा डेटाबेस मैनेज करूंगी ना, सो मैं एक बंदा है उसके दो दो कॉन्टैक्ट नंबर लूंगी। सो ऐसे स्ट्रक्चर मेंटेन हो सकता है इन फ्यूचर में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी तुम लोग डेटाबेस का काम करते हो, सो डेटाबेस में इट्स कंपल्सरी कि एक बंदे के दो नंबर होने चाहिए इमरजेंसी में। अगर एक नहीं लगता है तो दूसरे के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ऐसे स्ट्रक्चर मुझे डिजाइन करना है यूजिंग HTML। सो वो कैसे डिजाइन करेंगे, सो सी, जब भी तुम लोग एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करते हो, देन वी यूज ए कोल स्पैन। एंड जब भी यू आर डिवाइडिंग रोज इनटू मल्टीपल रोज, देन यूज ए रो स्पैन। ओके, सो मुझे इससे स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। सो स्ट्रक्चर को ठीक से देखो। फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर है नेम ऑफ स्टूडेंट, सेकेंड कॉलम है उसके अंदर है कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो भी यहाँ पे जाएंगे हम लोग। सो जस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। सो इट्स HTML। एंड HTML के अंदर यहाँ पे मैंने तो टेबल टैग लिया यहाँ पे। एंड टेबल टैग में फर्स्ट लिया टेबल रो। एंड उसके अंदर मुझे क्या चाहिए था, इट्स अ नेम ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम चाहिए था। सो दिस इज माय हेडिंग था। सो मैंने यहाँ पे ओपन किया, इट्स अ TH। ओके, एंड जो टेबल हेडिंग है वो नेम ऑफ द स्टूडेंट के पास क्लोज होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा इट्स अ क्लोज TH। अगेन TH ओपन किया, एंड दिस इज फॉर कॉन्टैक्ट नंबर। सो यहाँ पे लगा दिया मैंने इट्स अ कॉन्टैक्ट नंबर, इससे कॉन्टैक्ट नंबर, डन। ओके, अभी यहाँ पे बॉर्डर लगा देती हूँ मैं। सो वो ठीक से आइडेंटिफाई हो जाएगा। बॉर्डर इक्वल टू 2 किया। एंड स्पेस नहीं चाहिए, डबल बॉर्डर नहीं चाहिए। सो बॉर्डर स्पेसिंग जो है उसके अंदर मैंने 0 कर दिया। सो उसके कारण जो डबल बॉर्डर आ रही है वो निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया TR। उसके अंदर मैंने टेबल डेटा ऐड किया। एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इट्स सुरेखा। एंड देन अगेन मैंने TD लिया। टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे लिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, सपोज इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो कॉन्टैक्ट नंबर। एंड सपोज अगेन मैंने इसके अंदर TD दूसरा कॉन्टैक्ट ऐड किया, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो जस्ट सेव करते हैं हम लोग इतना ही स्ट्रक्चर। एंड देन मैं इसको रन कर दूँ। सो जस्ट रन करो। सो ये ऐसे दिखेगा। तो इन द सिनेरियो व्हाट हैपन, कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके अंदर ही दो कॉलम क्रिएट हुए। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर का एक ही कॉलम होना चाहिए, एंड उसके जो नीचे दो है उनका दो बनना चाहिए। सो इस केस में क्या करना है, किसको तुम लोगों को एक करना है, दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर। सो उसके टेबल हेडिंग में आओ, यहाँ पे लिखो कोल स्पैन, कितने कॉलम मर्ज करने, दो। दो कॉलम को मर्ज करोगे एक ही कॉलम में। ओके, एंड देन यहाँ पे आके कंट्रोल आर, सी व्हाट हैपन, आ गया। सो दैट इज योर कोल स्पैन। क्लियर है। सेकेंड इज समहाउ डेटा ऐसे मैनेज होगा, नहीं तो हम लोग हॉरिजॉन्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नया लुक लिया, डिजाइन लिया, यहाँ से रेक्टेंगल लिया। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर ली मैं दिस वन। देन हम लोग हॉरिजॉन्टली मैनेज करेंगे अभी। सो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक। ओके, देन नेक्स्ट फिर से मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया, डन। ओके, दैट्स इट। एंड फिर से मैंने यहाँ से, so just pick one more row, लाइन लिया मैंने, एंड यहाँ से यहाँ तक मैंने उसको प्रिंट किया। ओके, तो सी अभी इसमें क्या करना है मुझे। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करूंगी, सेलेक्ट कर लूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा इट्स नेम। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर। सो जस्ट यहाँ पे लिखती हूँ मैं इट्स कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं नाम लिखूंगी इस बंदे का, और यहाँ पे उसके दो कॉन्टैक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर मुझे डिजाइन करना है। अभी ठीक से स्ट्रक्चर को देखो, इसमें क्या हो रहा है, हेडिंग जो है कॉलम में आ रहे। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे कैसे करेंगे उसमें। सो जस्ट इसको पूरा नहीं रिमूव करती मैं, इसको हटाती हूँ यहाँ से। सो जो फर्स्ट रो है उसमें क्या दिख रहा है, ठीक से देखो। फर्स्ट रो है उसमें एक हेडिंग है, उसके अंदर डेटा आएगा। सो मैंने यहाँ पे ओपन किया TH, एंड उसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, नेम ऑफ द स्टूडेंट।
एंड उसी के अंदर उसका डेटा आएगा. सो डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सुरेखा. सो फर्स्ट रो मेरा क्लोज हो गया. ओके, अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन. सेकेंड रो में जाएंगे हम लोग, इट्स अ टी आर. फिर से यहाँ पे एक हेडिंग ओपन होगा, दैट इज टी एच. एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इट्स अ कॉन्टैक्ट नंबर. एंड फिर से यहाँ पे एक टेबल डेटा लूंगी मैं. अभी यहाँ पे मुझे ना दो कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड करने. सो दिस इज माई फर्स्ट रो एंड दिस इज माई सेकेंड रो. सो फर्स्ट रो में ऐड किया इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ओपन किया टीडी. एंड ओके, ये फर्स्ट रो मैंने क्लोज किया. एंड जो सेकेंड रो है उसी के अंदर मुझे फिर से एक टेबल डेटा ऐड करना है. दैट इज अगेन कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऐड किया मैंने. तो जस्ट सेव करो एंड रन करो. जस्ट रन करो. ये ऐसे दिख रहा है. सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है ना, ये उसका रो एंड नीचे का रो दोनों मिला के बनना चाहिए. सो कौन बनना चाहिए? दैट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर अगेन. सो तुम लोगों को क्या करना है, जस्ट कम हियर. कहाँ पे आना है? कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर ना. सो यहाँ पे आओ, जस्ट राइट डाउन रो स्पैन. कितने रो को तुम लोगों ने मर्ज किया? 2. सो जस्ट राइट डाउन 2. सो इट्स अ कोल स्पैन, सॉरी रो स्पैन. सेव करो एंड देन इसको रन करो. कंट्रोल आर. सी व्हाट हैपन, आ गया ना. सो दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ रो स्पैन एंड कोल स्पैन. Yes, done. So this is the table tag. So next is, okay, table tag is done, col span is done. So you guys just follow the assignments which is given by us to you. So just solve each and every assignments on a table tag because it's a very important tag. Okay, so that's it for today. The remaining session कल continue करेंगे हम लोग. Thank you.